इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु अशहदु لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وقال تعالى في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین عفت مآب پردہ نشین خواتین عزیز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں آج کے اس خطبہ جمعہ کے لیے جس موضوع کا انتخاب ہوا ہے وہ ہے جنت کے نظارے جنت کے نظارے کس نے جنت دیکھا ہے کسی نے نہیں دیکھا مگر ہم اس حیثیت سے سنیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے مینو عن صحیح ہے سچ ہے کریکٹ ہے ذرہ برابر بھی اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے مومنوں کی یہ علامت ہوتی ہے اور ایمان کی یہ نشانی ہے اگر ہم ذرہ برابر بھی ذہن میں یہ بات لائیں بس یہ مولوی صاحب ایسے بیان کرتے رہتے ہیں جو بھی قرآن حدیث میں آیا بس یہ خیالی پولاؤ ہے پتہ نہیں اوپر ملے گا یا نہیں ملے گا اگر اس طرح کے خیال آتا ہے تو سمجھ لو آپ کے ایمان میں نقص ہے کمی ہے عیب ہے اس کی اصلاح کی ذمہ داری آپ کی اس حیثیت سے ہم سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے قصے وغیرہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بتا دیا جنت دکھایا بلا کے معراج پر تجھے جنت دکھاؤں گا اس کی جو نعمتیں میں نے بنائی ہیں کس کس کوالٹی کی کیا کیا چیزیں میں نے بنائی ہے وہ تجھے دکھانا اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت دکھانے کے لیے معراج پر رہتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اللہ تعالیٰ نے
कुरान मजीद के अंदर उसके जो सिफात बयान किए, इंशाअल्लाह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर सूरह अस-सज्दा में चंद लफ्जों में उसकी हकीकत बता दी कि तुम उसका तस्वुर दुनिया में कर ही नहीं सकते, इतनी अच्छी जन्नत बनाई गई है। फरमाया फला तालमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति आयुन, तुम जानते ही नहीं, तुम्हें पता ही नहीं, तुम्हें इल्म ही नहीं कि मैंने इनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या चीजें तैयार करके रखी हैं, क्या क्या अल्लाह ने बनाया। अल्लाह के लिए इबादतें करने वालों, रियाजतें करने वालों के लिए अल्लाह ने उनकी आंखों को ठंडक पहुंचाने वाली चीजों में से क्या क्या चीजें तैयार करके रखा, किसी भी बंदे को मालूम नहीं। बुखारी शरीफ के अंदर किताबुत तफसीर के अंदर ये एक और रिवायत हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की गालिबन मिलती है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसी आयत करीमा के ज़िमन में, किसी दिल के अंदर वला खतरा अला क़ल्बि बशर, अब इससे बड़ी तारीफ क्या होगी जन्नत की, किसी दिल के अंदर उसका वहमो गुमान तक नहीं गुजरा, किसी कान ने उन्हें सुना नहीं, किसी आंख ने ऐसी चीजें कभी देखी ही नहीं है। हम सुनते हैं वहां आम, अमरूद, अनार, अंगूर वगैरह के दरख्त होंगे, वहां ये फल मौजूद होंगे, लेकिन नाम में सिर्फ मुशाबहत है। नाम सिर्फ वो है, उसका जायका, क्वालिटी और देखने में खूबसूरती, वो सारी चीजें बिल्कुल वहां मुख्तलिफ होंगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की तरबियत कैसे अंदाज में की, तो बयान करते थे ना, तो सहाबा का यकीन तो देखो, ऐसा लगता था जैसे वो अपनी यकीनी आंखों से इस दुनिया के अंदर जन्नत को देख रहे हैं, ऐसा महसूस होता था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, जंग का माहौल है, लड़ाई हो रही है, आते कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते उमैर बिन हुमाम रज़ियल्लाहु अन्हु, अराइतम कुतिलतु फाइना आना, आपका क्या ख्याल, क्या बता रहे हो मुझे, अगर मैं इस जंग में शहीद हो गया तो कहां जाऊंगा, काला फिल जन्ना, का जन्नत में जाओगे। तड़प तो देखो हजरत उमैर बिन हुमाम रज़ियल्लाहु अन्हु, फालका तमरातिन कुन्न फी यदी, बुखारी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी अपने हाथ में मौजूद जो खा रहे थे खजूरों को डाल दिया, जमीन पर फेंक दिया, अगर ये खजूर खाऊंगा तो जन्नत में जाने में देर ना हो जाए, मुझे तो जन्नत हासिल करना है। वो जो खजूर खा रहे थे उन्हें जमीन पर फेंक दिया और चले गए लड़ाई करने के लिए, क्योंकि नबी की जुबानी सुन्नत का था, अगर शहीद कर दिया जाऊं तो जन्नत में जाऊंगा। गए कातल हत्ता कुतिला, दुश्मनों से क़िताल किया यहां तक कि वो शहीद कर दिए गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बशारत दिया था, ये जन्नत वालों में से शहीद हो गए। एक और सहाबी रसूल है अनस इब्न नद्र रज़ियल्लाहु ताला, हज़रत सअद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से उनकी गुफ्तगू हो रही है। मुस्नद अहमद के अंदर 13658 नंबर की तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। गुफ्तगू के दौरान है अनस इब्न नद्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत साद इब्न मुआद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, आईना आईना, कहां जा रहा है तू, कहां जा रहा है। उस वक्त भी जंग का माहौल था, जंग उहुद का माहौल था उस वक्त। कहते कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो। उसी दौरान है अनस इब्न नद्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जुमला, बड़ा प्यारा जुमला फरमाया था, इन्नी लाजिदु रिहल जन्नति दून उहुद, मैं जंगे उहुद के पीछे जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। अल्लाह पर ईमान ऐसा, जंगे उहुद के पीछे जन्नत की खुशबू महसूस कर रहा हूं। जब वो जंग के अंदर शिरकत करते हैं, दुश्मनों ने उन्हें इतने तीरों से छलने किया, इतने तलवार मारे, इतने बर्छों से इनके बदन पे वार किया, 80 से ज्यादा जख्म इनके बदन पर लगाए गए। बहन आती अपने भाई को उसके उंगलियों के पोर से पहचानते, इतना मार मार के इनको जख्मी कर दिया गया, मगर जन्नत की खुशबू जो अपनी यकीनी आंखों से दुनिया के अंदर वो देख रहे थे, उन्हें जो जन्नत की खुशबू मिल रही थी, जामे शहादत तक पीने पर उनको मजबूर कर दिया। क्यों ना मजबूर करे, जो नबी के जुबानी उन्होंने सुन रखा था, मौदिअ सौतिन फिल जन्नत खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। हजरत सहल इब्न सअद रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस, बुखारी की 3250 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। आका नामदार ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मोमिनो, एक कोड़ा रखने के बराबर जन्नत में अगर तुम्हें जगह मिल जाए, कायनात के जर्रे जर्रे को तुम छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। एक कोड़ा रखने के बराबर मामूली सी थोड़ी सी जगह
याद रखना, ये दुनिया की सारी चीजों से ये जगह बेहतर है, तुम उसे छोड़ने के लिए तैयार हो जाओगे। मौदिउ सौतिन फिल जन्नति खैरुम मिनद दुनिया व मा फिहा। भाइयों, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी चीजें, जो भी नेमतें, जो भी आराइश है, जो भी ज़ेबाइश है जन्नत के मुताल्लिक बयान फरमाई है, हमारा यकीन है कायनात का ये जर्रा जर्रा झूठा हो सकता है, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान झूठा नहीं हो सकता इंशाअल्लाह तबारक व तआला। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह ताला कुरान मजीद के अंदर भी और इसी तरह से जन्नत के कई एक नाम कुरान मजीद के अंदर आते हैं, जन्नात अदन, जन्नातुल मअवा, जन्नातुन नईम, दारुस सलाम, दारुल करार, दारुल आखिरा वगैरह तकरीबन कई नाम आते हैं। प्यारे नबी ने फरमाया 8 दरवाजे जन्नत के 8 दरवाजे होंगे, बाबुस सलाह, बाबुल जिहाद, बाबुस सदका, बाबुर रैयान वगैरह वगैरह। जो अमल दुनिया में खास तौर पे बंदा ज्यादा किया होगा, फराइज पर अमल करने के साथ साथ अल्लाह ताला उस दरवाजे से उसको दाखिल फरमाएंगे। कई दरवाजे उसमें पाए जाएंगे। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशे के मुताल्लिक फरमाया, जन्नत के खुशे कैसे होंगे, वो कभी खत्म होने वाले नहीं होंगे। जन्नत अदन ने कहा है, ऐसी जन्नत, ऐसे बागात जो कभी खत्म होने में ना आएंगे, ऐसे फल, ऐसे मेवे जो कभी कम ही नहीं होंगे। बुखारी की रिवायत के मुताबिक जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 748 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज ग्रहण लगा, सूरज को ग्रहण हुआ तो आपने नमाज पढ़ाई, नमाज में कभी आगे गए कभी पीछे चले आए। फकालू या रसूलल्लाह रअयनाका तनावलता शय्यन फी मकामिक, अल्लाह के नबी हमने देखा आप अपने जगह से थोड़ा आगे बढ़े, तुम रअयनाका तकाकाता, हमने देखा फिर पीछे हो गए, कभी आगे गए कभी पीछे चले आए, इसका सबब बयान कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उरीतुल जन्ना, ओ मेरे सहाबा जन्नत मैंने देखा, जन्नत मुझे दिखाई गई और मैंने ये चाहा कि मैं उसमें से खोशा ले लूं। उरीतुल जन्ना, मुझे जब जन्नत दिखाई गई, जन्नत में फलों के लटके हुए खोशे और उसके गुच्छे जो मैंने देखा, मैंने सोचा कि उसमें से तोड़ लो, दुनिया के अंदर ले आओ। वलो अखदतुम मिन्हो ला अकलतुम मिन्हो मा बक़ीत दुनिया, कमा क़ाल, फरमाया अगर उसमें से मैं एक खोशा ले लेता है, गुच्छा लेता, ला कुलतुम मिन्हो मा बक़ीत दुनिया, ओ मेरे साहबा जब तक ये दुनिया कायम रहती तुम उसमें से खाते। दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम की जितनी भी औलाद है सारी मिलके अगर वो गुच्छे से, वो खोशे से खाती, कयामत की सुबह तक वो एक गुच्छा खत्म होने में ना आता। जन्नती जन्नत में जाएंगे, 14वीं रात के चांद के मानिंद उनका चेहरा चमक रहा होगा। जन्नती जन्नत में जाएंगे, तमाम तरह की आराइशों से, गंदगियों से वो पाक होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक फरमाया, उसमें उनको रेत नहीं आएगा, नाक से बदबूदार पानी जो आता वो पानी नहीं आएगा, उनको बलगम नहीं निकलेगा, वो वहां पेशाब और पाखाना नहीं करेंगे, बल्कि हवा, उनको हवा ऊपर से निकलेगी, डकार मारेंगे, उसमें से भी मुश्क की खुशबू आएगी। कई एक रिवायतें जनाब अरबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके मुताल्लिक मौजूद है। जन्नत के अंदर जो भी बंदा जिस चीज की भी तमन्ना करे वहां फौरन उसके लिए हाजिर हो जाएगा। इसकी सिफत अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, फहुवा फी ईशतिर रादिया, ये मनचाही जिंदगी होगी, मनपसंद जिंदगी होगी। भाइयों, दौलत होने के बावजूद भी, रुपया होने के बावजूद भी दुनिया के अंदर कभी कभी बंदा ऐसा मजबूर होता है कि पैसा खर्च करने के बावजूद भी अपनी मनचाही चीज वो तलब नहीं कर पाता, वो खरीद नहीं पाता, उसे मिलती ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर फरमाएगा, आए अल्लाह रब्बुल आलमीन के मेहमान बनकर आने वाले, आज तू ज़ात का मेहमान बन के आया, जो तुझे मनचाही जन्नत अता करेगा, जो भी तेरा दिल चाहेगा वो तुझे यहाँ मिल जाएगा। दुनिया में तुझे कुछ खाने को ना मिला, कुछ पीने को ना मिला, पहनने को ना मिला, दुनिया में मौज मस्ती की जिंदगी गुजारने को ना मिला। अब सारी कसर निकालने के लिए तैयार हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझे जन्नत में तेरी मर्जी के मुताबिक जो चीज तू तमन्ना करे, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सब कुछ तेरे लिए मुहैया कर रखा है। जन्नत के मुताल्लिक प्यारा नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले जन्नत में मैं जाऊंगा, जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खोला जाएगा
और मेरे उम्मती सबसे पहले फिर जन्नत में जाएंगे, दुनिया में सबसे आखिर में आए। ये रिवायत आपको सही मुस्लिम शरीफ की 855 नंबर के तहत आपको मिल जाएगी। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं नहनुल अव्वलून अल आखिरून, नहनुल आखिरून अल अव्वलून व नहनु अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह। और मेरे उम्मतियों, हम आए तो सबसे आखिर में दुनिया के अंदर, लेकिन जन्नत में हमको सबसे पहले दाखिल किया जाएगा, हम सबसे पहले जन्नत में जाएंगे। जब प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के दरवाजे पे आके खड़ेंगे, जन्नत के दरबान को मुखातब करके आवाज देंगे, जन्नत का दरवाजा खोला जाए। प्यारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक सही मुस्लिम शरीफ की 197 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस है, कहते हैं आती बाबल जन्नह, मैं जन्नत के दरवाजे पे आऊंगा। उससे पहले हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो दीगर अंबिया के लिए ये जन्नत का दरवाजा खोला नहीं गया हुआ है। अभी सब महशर की तपिश में है, या फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने रहमत के साए में उन्हें लिया है, या फिर किसी और जगह वो लोग खड़े हुए हैं जन्नत के दरवाजे के खुलने के इंतजार में है। अल्लाह के नबी कहते हैं सबसे पहले मैं दरवाजे के पास आऊंगा और पास दरवाजा खटखटाऊंगा, खोलने का हुक्म दूंगा। कहेगा वो जन्नत का फयक़ूलुल खाज़िनु मन्नन, अंदर से आवाज आएगी मन्नन तुम कौन हो जरा बताओ तो सही। फ़अक़ूलु मुहम्मद, मैं अपना नाम बताऊंगा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आखिरी पैगंबर आखिरी नबी हो जो जन्नत का दरवाजा खटखटा रहा हूं। वो जन्नत का खाजिन अंदर से दरवाजा खोलते हुए आवाज देगा बिक़ौमिन तो ला अफ़्तहु लिअहदिन क़ब्लक, ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आप ही का नाम लेके तो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया था, इस ऑर्डर का पाबंद बनाया था कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से पहले किसी और के लिए जन्नत का दरवाजा ना खोला जाए। आइए आपके लिए मैं जन्नत का दरवाजा खोल रहा हूं। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया हम सबसे आखिर में दुनिया में और सबसे पहले जन्नत के अंदर जाएंगे। 70,000 उनमें ऐसे लोग होंगे जो बगैर हिसाबो किताब के अल्लाह ताला उनको जन्नत में दाखिल फरमा देगा, बगैर हिसाबो किताब के। लेकिन अरबों की तादाद में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इस दुनिया के अंदर मौजूद है। तड़प गए सहाबा, कहते हैं अल्लाह के नबी ये तादाद तो बड़ी कम है, ये तादाद तो बहुत छोटी है, अल्लाह से दुआ कीजिए। अल्लाह के नबी ने दुआ किया होगा, फरमाया हर 1000 के साथ 70,000 ऐसे अफराद होंगे जो इनके साथ भी जाएंगे, यानी हर 1000 को हुक्म देंगे कि हर 1000 को हुक्म देंगे कि तुम अपने साथ 70,000 लेकर के जाओ। इस तरह से फिर तकरीबन 4 अरब 80 करोड़ या इस तरह से कुछ तादाद बनती है। अब ये बगैर हिसाब किताब के इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से जन्नत में जाएंगे। अल्लाह हम सब का शुमार इन जन्नत में बिला हिसाब किताब जाने वालों में शुमार कर ले। भाइयों, प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं कि हमारे उम्मतियों में जो सबसे पहले जन्नत में जाएंगे वो फुकरा होंगे, गरीब लोग होंगे, मुहाजिरीन होंगे। क्योंकि जो अमीर थे दुनिया के अंदर अपनी दौलतों में मस्त और मगन थे, वो अल्लाह के यहाँ खड़े होकर हिसाब दे रहे हैं, अपनी दौलतों का अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जवाब दे रहे हैं। अल्लाह पूछ रहा है उनसे कि बताओ मैंने तुमको जो दुनिया के अंदर दौलतें दी थी उसको कहाँ खर्च किया था, बताओ। ये जवाब देने में लगे हैं। और गरीब जिसके पास कुछ नहीं था, जो फकीर था, जिसने हिजरत किया था दुनिया के अंदर सब कुछ छोड़कर अल्लाह के लिए भाग गया था, अल्लाह रब्बुल आलमीन से सबसे पहले जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और उनकी सिफतें क्या बयान फरमाई हदीस के अंदर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अव्वलु मन यदखुलुल जन्नह फुकराउल मुहाजिरीन शुतुरूसन, जिनके बाल परागंदा होंगे, कपड़े मैले होंगे, कपड़े मैले रहते थे, बाल परा गंदा रहते थे, जो फकीर थे, जो मुहाजिरीन थे, जिन्हें मक्के की गलियों में घसीटा गया, जिन्हें मारा गया, जिनको जो है तपती रेत में तड़पाया गया, वो फुकरा मुहाजिरीन जिन्हें अपना घर बार सब कुछ छोड़कर अल्लाह के दीन के लिए भाग जाने पर मजबूर किया गया, जो मक्के में अपने घर बार और सारी जिंदगी की कमाई पूंजी दौलत सब कुछ छोड़ के मदीना हिजरत करके चले गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो सबसे पहले फकीर और वो हिजरत करके जाने वाले लोग जन्नत के अंदर दाखिल किए जाएंगे। अल्लज़ीना ला यनकिहूनल मुतनाइमात, और एक सिफत उनकी अल्लाह के नबी ने यह भी बयान फरमाई, जो दुनिया के अंदर ये ताकत नहीं रखते थे कि नाज़ो निअम में पली बड़ी और इस तरह से नाज़ो निअम में परवरिश पाने वाली लड़कियों से वो अपना निकाह कर सके। अपने समाज का जायजा ले लो भाइयों, सेठ जी के घर पे उसी आदमी का रिश्ता आएगा जिसका लड़का भी सेठ हो, जिसका लड़का भी अमीर हो। उसके घर की लड़की किसी गरीब आदमी की
से निकाह नहीं कर सकती है, क्योंकि अमीरी और गरीबी का फर्क यहाँ जाता है। गरीब लड़के के अंदर हजारों खूबियां सही, गरीब लड़के के अंदर हजारों खूबियां मौजूद हो, उसके बावजूद भी सेठ जी की लड़की, अमीर आदमी की लड़की गरीब से शादी का हक नहीं रखती है, या उसका निकाह उसे नहीं किया जाता महज इस बुनियाद पर कि वो गरीब है। प्यारे नबी ने फरमाया यही गरीब जो दुनिया के अंदर अमीर की बेटी से शादी की ताकत नहीं रखता था, सबसे पहले जन्नत के अंदर जाएगा। मेरा पड़ोसी मेरे साथ जाएगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। जिन्होंने दुनिया के अंदर नेक अमाल भी किए हैं वो यहाँ मुराद है। ऐसा नहीं गरीब पिता और बदमाश पिता तो फिर नबी के साथ जन्नत में जाएगा, नहीं। यहाँ इबादत और ईमान मामलात अच्छे होना ये शर्त है, उसके साथ अगर इसके बगैर वो जा रहा है तो फिर वो जन्नत का हकदार बिल्कुल भी नहीं होगा, बल्कि पकड़ा जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ। जन्नत का जो मोहल्ला प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सवाल किया, पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्मा खुलिकल खल्क, ये मखलूक जो दुनिया के अंदर रचाई बसाई गई किस चीज से पैदा की गई, किस चीज से पैदा की? क़ाला मिनल मा, फरमाया ये पानी से पैदा की गई, पानी से अल्लाह ताला ने इनको पैदा किया। पानी की किस बुनियाद पर? अल्लाह ताला कुरान में तो कहता है कि मैंने इनको मिट्टी से पैदा किया, चिपचिपे मिट्टी से। उसका जवाब यह है कि अव्वलन अल्लाह ताला ने मिट्टी से पैदा किया था, लेकिन बाद में तख्लीक का जो जरिया बनाया वो पानी ही है। रहमे मादर में जो शौहर के जरिए, बाप के जरिए एक औरत के पेट में जाता है कतरा, वो पानी ही होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब यहाँ दिया। और फिर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला ने पूछा अल जन्नत मा बिना हुआ है, अल्लाह के नबी बताइए जन्नत कैसे बनाई गई, उसके बनाने की सिफत क्या है? प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लबैनातुम मिन दहब व लबैनातुम मिन फिद्दा, अल्लाह ताला ने जन्नत को जो बनाया है, जन्नत में एक ईंट सोने की लगाई, दूसरी ईंट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चांदी की लगाई हुई है। लबैनातुम मिन दहब व लबैनातुम मिन फिद्दा, सोने चांदी के ईंटों से ये जन्नत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार फरमाया है। और उसका जो सीमेंट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने लगाया हुआ है वो ज्यादा खुशबू देने वाले, बहुत काफी मिकदार में खुशबू देने वाले मुश्क से उसका गारा, उसका सीमेंट वगैरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तैयार किया। हस्बाउहल लुअलु वल मरजान, जन्नत के अंदर जो संगरेजे पाए जाएंगे, जो कंकर पत्थर होंगे, वो ये दुनिया के कंकर पत्थर नहीं होंगे, बल्कि मोती होंगे, मोगे होंगे, मरजान होंगे, याकूत होंगे। वहां जो कंकर पत्थर की शक्ल में पाए जाएंगे हीरे और याकूत पाए जाएंगे। वह तुरबतुहा ज़ाफ़रान, जन्नत की जो मिट्टी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बनाई है वो ज़ाफ़रान की बनाई है, वो भी खुशबूदार है। यानी जब जन्नती जन्नत में जाए तो किसी भी तरफ से उसे बदबू ना आए, हर तरफ से उसके नाक में खुशबू ही खुशबू आए। ऐसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत को बनाया है। बड़े बड़े मोतियों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खेमे तैयार कर रखे हैं, उन खेमों के अंदर उनकी बीवियां उनका इंतजार कर रही होंगी। अल्लाह ने अगर चाहा तो आने वाले जुमा में इनकी बीवियों का और जन्नत की हूरों का, जन्नती औरतों का तज़किरा भी तफसील किया जाएगा। आज इतना आप समझ लें, अल्लाह ताला जन्नती जब जन्नत में जाएंगे, मुस्लिम शरीफ की रिवायत के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सूरतुहुम अला सूरतिल क़मर लैलतल बदर, जन्नती जो पहला जुमरा जन्नत के अंदर जाएगा उसका चेहरा 14वीं के रात के चांद के मानंद उसका चेहरा चमक रहा होगा। 14वीं रात के चांद के मानंद चमकते हुए चेहरे वाले ये तो जो है जन्नत में जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया जुरदम मुरदम मुखलीना बना तलातीना व तलाता व तलातीन, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो उनके बदन पर उनके चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं होंगे, उनके मोछ के बाल नहीं होंगे, उनके चेहरों पर गैर जरूरी बाल नहीं होंगे, उनके बदन के पूरे हिस्से पर कहीं भी गैर जरूरी बाल नजर नहीं आएंगे। जुरदम मुरदम मुखलीना बना तलातीना व तलाता व तलासीन, 30 या 33 साल के दरमियान उनकी उम्र होगी, यानी वो बूढ़े भी नहीं होंगे। वही रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वाली जो मैंने आपके सामने पेश किया, जन्नत की सिफत जिसमें बयान की गई है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें यहाँ तक बयान फरमाया था मैं यदखुलुहा यनअम ला यबास,
जो जन्नत के अंदर दाखिल किया जाएगा हमेशा तरोताजा रहेगा, हशाज बशाज रहेगा, कभी उस पर गम ना आएगी, ला यबास, कभी उस पर मुसीबत ना आएगी, कभी वो परेशान ना होगा, कभी वो रंजीदा और गमगीन ना होगा, कभी उसे बीमारियां ना आएंगी। यदखुलूना फिहा मन यदखुलु फिहा यनामु ला यबास यदखुलूना ला यमूतून। जन्नत में जाने के बाद हमेशा हमें जन्नत के अंदर रहेंगे, कभी जन्नत के अंदर उन्हें मौत ना आएगी। ला तबला थियाबुहुम वला यफना शबाबुहुम, इनकी जवानी कभी वहां मुर्दा नहीं होगी, इनकी जवानी वहां कभी फना नहीं होगी, इनके कपड़े भी कभी वहां बोसीदा नहीं होंगे। यानी जब एक बंदा जन्नत में जाएगा तो उसके कपड़े कभी पुराने ना होंगे, कपड़े कभी गंदे ना होंगे। चलो 2 दिन 3 दिन पहन लिया तो इसको धुलने की नौबत आ गई, नहीं, ऐसे लिबास अल्लाह रब्बुल आलमीन चमकते हुए इनको पहनाएगा जो कभी गंदे नहीं होंगे, और जन्नत के अंदर इनकी जवानी भी कभी गारत नहीं होगी। ये दुनिया के अंदर जो गड़बड़ कर करके आते, कभी दाढ़ियां छुला के आए, कभी बालों में काला लगा के आए, ये खुद को खूबसूरत बनाने के लिए दुनिया के अंदर अपने आप को जवान बनाकर पेश करने के लिए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नाफरमानियां करके आते हो भाइयों। यहाँ दुनिया के अंदर चंद दिन की जो जिंदगी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक गुजार के तो देखो, तुम्हारी ये सारी तमन्ना अल्लाह रब्बुल आलमीन जन्नत के अंदर जो पूरा करने का वादा कर रहा है। मेरे हुक्मों की फरमाबरदारी करके आ जाओ लोगों, मैं तुम्हारा परवरदिगार तुम्हारी मनचाही जन्नत तुम्हारे लिए तैयार करके रखता हूँ। ना दाढ़ी पे बाल होंगे जिसे तुम नहीं चाहते, ना मोछों के बाल होंगे, 30 से 35 साल की फुल जवानी वाली उम्र तुम्हारी होगी, तकरीबन 60 हाथ की लंबाई तुम्हारी होगी जन्नत में जाते हुए। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मयदखुलुल जन्नह, जो शख्स भी जन्नत के अंदर जाएगा, अला सूरत आदम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो हाइट है, उनकी जो बनावट है, उनकी जो कद काट है, उसके मुताबिक वो जन्नत में जाएगा। तूलहु 60 दिरान, 60 हाथ की लंबाई उसकी होगी जन्नत में जब जाएगा। ये सिफत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी बयान फरमाई है। और एक आखिरी बात आज के इस खुतबे जुमा में जिक्र करके इंशाअल्लाह जो है अपने खुतबे को खत्म करने की कोशिश करेंगे। जन्नत में जब जन्नती चले जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको एक नेमत देगा, वो रज़ा की नेमत है। दुनिया में कभी हमसे गलतियां हो जाए, कभी कुछ गुनाह का काम हो जाए, अल्लाह नाराज हमसे हो जाता था, लेकिन जन्नत में अल्लाह कभी हमसे नाराज नहीं होगा। चुनांचे अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 21 में इरशाद फरमाता है, युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिदवान। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बशारत देता है अपने जानिब से रहमत की और रज़ा की, रिजवान की यानी रज़ा की अल्लाह रब्बुल आलमीन बशारत देता है। व जन्नातिल लहुम फीहा नईमुम मुकीम, और ऐसे जन्नत की अल्लाह इन्हें बशारत देता है जिसकी नेमतें उसमें हमेशा हमेशा रहेंगी, नेमतें कभी खत्म नहीं आएंगी, होने में आएंगी। दुनिया का मामला क्या है, अच्छी से अच्छी चीज खरीद कर लाए, कुछ दिनों तक फायदा उठाए, खत्म हो गया, चलो दूसरा लाओ। दूसरा लाने की ताकत नहीं तो फिर वैसे ही जिंदगी गुजारो। अच्छी से अच्छी चीजें खाने के लिए लाए थे, राशन पानी घर में भर के रखे थे, अब वो खत्म हो गई, चलो दूसरी लेके आओ। ये दुनिया का, लेकिन अल्लाह ने जो बनाया कभी खत्म होने में नहीं आएंगी, हमेशा हमेशा के लिए जन्नत में रहने वाली है। व जन्नातिल लहुम फीहा नईमुम मुकीम। सही बुखारी शरीफ की 7518 नंबर के साथ ये बात आपको मिल जाएगी। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये हदीस है, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन बुलाएगा, या अहलल जन्नह, ऐ जन्नतियों, ऐ जन्नतियों बताओ। जन्नती मुखातब हो जाएंगे और कहेंगे लब्बैक व सअदैक वल खैरु फी यदैक, अल्लाह हाजिर है, तेरा हर हुक्म मानने के लिए तैयार है, सारी भलाइयां तेरे ही हाथ में, तू जो चाहे वो करे। जन्नती जवाब देंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे सवाल करेगा, हल रज़ीतुम, जन्नतियों बताओ क्या तुम राजी हो या नहीं, जन्नत मिलने पर तुम खुश हो या नहीं। अगर मेरे बनाए हुए जन्नत में किसी चीज की कमी का एहसास हो रहा हो तो बताओ। अल्लाह जन्नत देने के बाद भी जन्नतियों से सवाल कर रहा है, और दुनिया के अंदर से मेरी रज़ा हासिल करके आने वालों, दुनिया के अंदर मेरी इबादतें करके मेरे सामने सजदे में गिड़गिड़ा के आने वालों, मेरे सामने सजदे में सर झुका के आने वालों, बताओ तुम्हें यहाँ खुशी मिली या नहीं मिली, तुम यहाँ राजी हो या नाराज हो, यहाँ कुछ कमी तो नहीं हो रही। अल्लाह ताला उनसे सवाल करेगा, वो जन्नती जवाब देंगे, अल्लाह
वमा लना ला नरदा वक़द आतैतना मा लम तुति अहदम मिन खल्क़िक, अल्लाह हम क्यों नाराजी हो, हम क्यों ना खुश हो, तूने हमें तो ऐसी नेमतें अता फरमाई, ऐसी प्यारी प्यारी चीजें दी है अल्लाह जो कायनात में अपने बंदों में से किसी को तूने न दिया होगा। अल्लाह वो चीजें मिलने के बाद फिर हमें खुशी क्यों ना हो, हम राजी क्यों ना रहे यहाँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फिर उसके बाद फरमाएगा वहल उअतीतुम अला उअतीतुम अफदल मिन हादा, ऐ जन्नतियों क्या तुम्हें इससे ज्यादा बेहतर चीज ना अता कर दूं, इससे ज्यादा बेहतर चीज ना दे दूं। जन्नती जवाब में कहेंगे अल्लाह हल अय्यु शैइन अफदल मिन दालिक, अल्लाह जन्नत तूने दिया इससे बड़ी चीज और क्या है, इससे बड़ी नेमत और क्या तूने छुपा के रखी है जो हमें देगा। अल्लाह ताला उनके सामने ऐलान फरमाएगा उहिल्ला अलैकुम रिदवानी फला सत अलैकुम बअदहु, ओ जन्नत में जाने वाले जन्नतियों खुश हो जाओ, तुम्हारा परवरदिगार आज के बाद तुमसे कभी नाराज ना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे कभी खफा नहीं होगा, मैंने अपनी रज़ा तुम्हारे लिए हलाल कर दिया, वाजिब कर दिया, इसके बाद मैं कभी नाराज नहीं होऊंगा, तुमसे राजी ही रहूंगा हमेशा हमेशा के लिए। मैं जन्नती खुशो खर्रम वहां जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह अकबर। 60 हाथ की उनकी लंबाई है, 30 से 33 साल की फुल जवानी है, बदन पर गैर जरूरी बाल नहीं है, नेमतों में तरोताजगी में मनचाही जिंदगी गुजार रहे हैं। बीबियां खेमों में बैठकर उनका ऐसे इंतजार कर रही हैं, बेसब्री के साथ उनका इंतजार कर रही हैं बीबियां। और वहां 100 मर्दों की कुव्वत अल्लाह रब्बुल आलमीन एक मर्द को अता फरमाएगा। 100 मर्दों की कुव्वत एक एक मर्द को वहां मिलेगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी सारी नेमतों से एक बंदे को नवाजेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको जन्नत के लिए फिक्र करने, कोशिशें करने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको जन्नतुल फिरदौस में दाखिला नसीब फरमाए। दूसरा हिस्सा इंशाअल्लाह रहमान आने वाले जुमा में पेश करने की कोशिश करूंगा, जिसमें जन्नती खवातीन और जन्नत में मिलने वाली हूरों और दीगर बाज़ नेमतों का जिक्र इंशाअल्लाह खास तौर पे किया जाएगा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरानिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद दिक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम रऊफ़ुर रहीम।